everyone, this is Minakshi Karwa and you're watching TWD Shorts. Wait, what? What is that? TWD Shorts is a series of episodes which you are going to watch in your break time. Why? Break time may, for example, in a day you are taking 5 to 7 short breaks from your study schedule, and वो break time में these episodes are going to help you to revise one whole chapter in one day without watching 1 hour long revision videos. You want to see how it works, then you will have to watch this video. This is first episode of TWD Shorts. So just go for it, watch this video, and in the end you will understand how is this going to be fun for you, as well as it will make your break time utilized to revise one whole chapter. So let's start with this first episode, and do let me know your feedback in the end. So welcome to the very first episode of TWD Shorts. We are going to cover the chapter Accounts of Companies in this full series, and in this first episode we are going to cover section 128 of Companies Act 2013. I do have my handwritten notes also of this chapter from which this is prepared. So if you want those, you can request me. They'll be available at request. You can email me or you can reach me through the Telegram channel. That link is given in the description box. So from there you can get the notes from me. So we'll start with the overview of this chapter. I just want you to give you an overview that what we are going to do in this very quick session. So we'll see the definition of financial statements, the method of preparing them, the location where they have to be kept, the books of accounts of branches, how do we and for what years do we have to preserve the books of accounts, the books of accounts ka inspection by directors, and very two important rules, rule 4, rule 3, and lastly we'll see the penalties. So let's start with the first definition of financial statements under section 240. The basic 5 things which we see in every financial statements are the balance sheet, the P&L account or the income expenditure account of the NPO, the cash flow statements, the statement of changes in equity, and the explanatory notes. Cash flow statements are not applicable to a few companies. There are some exceptions. So which are they? The one-person company, dormant companies, small companies, startup private companies which haven't committed any default under section 137 or 92. These companies are exempt from the preparation of cash flow statement. Next, we move on to the method of preparation of books of accounts. While preparing these books of accounts, we have to keep some things in mind that we should ensure that it gives a true and fair view. It should explain all transactions which happened at the registered office or branches. वो सब उसमें include होना चाहिए books of accounts में उनके explanations. It should be prepared on accrual basis and it should be on double entry system of accounting. ये basic चीज़ें जो हम लोग 12th से देख रहे हैं, 2 चीज़ें accrual और double entry system. Next we go to the location of books of accounts. Books of accounts कहाँ रखना है? You can keep it at registered office or any other place as decided by the board of directors. तो ये जो decide करना है इसके लिए रखनी पड़ेगी meeting. The meeting shall be convened to resolve the location of books of accounts. Within 7 days you have to intimate the full address of such place. जो decide हुआ है meeting में वो intimate करना होगा ROC को in form AOC 5. नेक्स्ट वी गो टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांचेस. ब्रांचेस के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं. कहाँ रखेंगे? ब्रांच ऑफिस में रखेंगे. एंड हाउ डू द रजिस्टर्ड ऑफिस गेट टू इट? दे विल बी कॉलिंग समराइज्ड रिटर्न्स. समराइज्ड रिटर्न्स विल बी सेंट बाय द ब्रांचेस टू रजिस्टर्ड ऑफिस. पीरियडिकली वो लोग जैसे जैसे मंगवाएंगे एज पर द पीरियड्स वैसे वो लोग भेजते जाएंगे टू द रजिस्टर्ड ऑफिस और सच अदर प्लेस, जैसे भी बोर्ड डिसाइड करेंगे उस हिसाब से. नेक्स्ट, प्रिजर्विंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखना है कितने टाइम तक? 8 फाइनेंशियल ईयर्स, नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर्स. 8 साल तक करना है. लेकिन अगर आपकी कंपनी 8 साल से कम एग्जिस्टेंस में है, नई बनी है, तो जितने टाइम तक बनाई हुई है तब तक प्रिजर्व करके रखना है. या फिर इंस्पेक्शन आ गया है, इन्वेस्टिगेशन आ गया है आपकी कंपनी का, केस समझो 10 साल तक का हमको इन्वेस्टिगेट करना है, तो सीजी में डायरेक्ट सच लॉन्गर पीरियड कि आपको 10 साल तक प्रिजर्व करके रखना होगा. So like that, investigation of company has been ordered, then CG can direct a longer period for how much time you have to preserve the books of accounts.
नेक्स्ट वी गो टू द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय डायरेक्टर. डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं. कौन से डायरेक्टर्स? एनी डायरेक्टर्स. Any director can inspect the books of accounts which will be kept at registered office or any other place. And कब कर सकते हैं? During business hours. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आउटसाइड कंट्री है तो क्या करेंगे? कॉपीज मेंटेन करेंगे एंड दे विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इंस्पेक्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशंस. कंडीशंस के हिसाब से उनको प्रोड्यूस करके इंस्पेक्ट किया जा सकता है बाय डायरेक्टर. बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर सब्सिडियरी के हैं तो क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसमें एक बंदे को ऑथराइज करेंगे कि आप जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस टेक्स अस टू रूल 4. रूल 4 क्या बोलता है कि जो बुक्स आउटसाइड इंडिया मेंटेन हुए हैं, समराइज्ड बुक्स विच आर मेंटेन आउटसाइड इंडिया, दे शैल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस एट क्वार्टरली इंटरवल्स. क्वार्टरली इंटरवल्स में हमको बुक्स भेजे जाएंगे. जो आउटसाइड इंडिया वाले हैं वो हमको बुक्स भेजेंगे क्वार्टरली इंटरवल्स पे और हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में दे विल बी मेंटेन्ड एज वेल एज दे विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स उनको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं. एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड बाय डायरेक्टर. डायरेक्टर को अगर कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए डायरेक्टर क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट फर्निश करनी पड़ेगी कंपनी को कि भाई मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए. उसके बाद कंपनी क्या करेगी? 15 days फ्रॉम रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट कंपनी जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अरेंज करवा देगी डायरेक्टर्स के लिए. लेकिन ये चीज सिर्फ डायरेक्टर कर सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं. ओनली डायरेक्टर कैन एक्सेप्ट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉट हिज पावर ऑफ अटॉर्नी. उसके पास ये पावर नहीं है. नेक्स्ट वी गो टू द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रूल 3 वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं तो वो इंडिया में एक्सेसिबल रहने चाहिए एंड दे शैल बी रिटेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्मेट. आपको कोई डुप्लीकेशन या बैकअप लेनी है तो अलग बात है, लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्मेट में भी मेंटेन रहना चाहिए. उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. दे शैल बी रिटेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्मेट. दे शैल बी कंप्लीट एंड अनऑल्टर्ड. वो लेजिबल फॉर्म में डिस्प्लेड होना चाहिए. इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्प्लेड इन लेजिबल फॉर्म एंड प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए उसकी सिक्योरिटी का, उसका स्टोरेज का, उसके डिस्प्ले का. अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके प्रिंटिंग, उसके रिट्रीवल का, सबका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. एंड सच रिकॉर्ड्स उनको आप हाथ नहीं लगाओगे, उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, डिस्पोज नहीं करोगे जब तक यू आर परमिटेड बाय लॉ. सच रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज्ड अंटिल परमिटेड बाय लॉ. एंड इंटीमेशन टू कंपनी टू ROC, इंटीमेशन बाय कंपनी टू ROC. ROC को इंटीमेशन देगी कंपनी ऑन एनुअल बेसिस. किस चीज का इंटीमेशन देगी? जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेटा सेव्ड है तो उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम, उसका IP एड्रेस, उसका लोकेशन और जो क्लाउड पे हमारा डेटा मेंटेन्ड है उस क्लाउड का एड्रेस, ये सारी चीजें ROC को इंटीमेट की जाएगी बाय कंपनी ऑन एनुअल बेसिस. नेक्स्ट वी गो टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस. ये सारी चीजें जो रूल है इनको कंप्लाई करना पड़ेगा और ये बराबर कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजिंग डायरेक्टर की, होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस का इंचार्ज है उसकी, और CFO की, एंड एनी अदर पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको इंचार्ज बनाता है कि भाई तुझे ये ध्यान रखना है, उस बंदे की भी. तो ये सारे बंदों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे कि ये सारी चीजें कंप्लाई हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो लगेगी पेनल्टी. कितनी लगेगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year या फिर फाइन मिनिमम 50,000 या मैक्सिमम 5 लाख का फाइन लगेगा, और बोथ दोनों भी लग सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर एपिसोड 1. We are finishing the first episode of section 128. So this was our first episode of TWT Shorts covering section 128 of Companies Act 2013. I would strongly recommend you to give feedback for this video so that I can improvise and I can get motivated and bring you more videos which will help you to revise your subjects and chapters faster. So I'll see you very soon in the next episode. Till then, take care. Keep studying. Bye-bye.